This call is now being recorded. So now we are on the Act 4, Scene 2. Scene 2 is the last scene of Act 4, and this is quite small scene. In fact, it's kind of a continuation of the previous scene, right? So what happens? That Grishano overtakes this Portia and Narissa in a stair near the court, and he gives the Sanios ring to Portia. You may all remember that when we were discussing the last scene, Act 4, Scene 1, in that scene, that scene is known as the court scene, or you can say trial scene. In that scene, Portia was able to rescue Antonio from Shylock's agenda. As you know, Sherlock was so much interested to have Antonio's body flesh, 1 pound of flesh of Antonio's body, and somehow Portia was able to rescue him, right? So in that scene, Duke asks, invites actually, the Duke of Venice invites her and her clerk for dinner, but they denied for the dinner. Then the Duke suggests Antonio and Bassanio to pay them handsomely. Some reward should be given, right? उनके कारण एंटोनियो की जान बची है. सो ड्यूक ने एक सजेशन दिया था that they should reward them. सो रिवॉर्ड में किसने क्या मांग लिया था? बहुत होशियारी से, बहुत क्लेवरली पोर्शिया ने क्या किया, एंटोनियो से उसके ग्लव्स मांग लिए एंड बसानियो से एक रिंग मांग ली. यू रिमेंबर द रिंग दैट पोर्शिया गेव him before their marriage, and बसानियो ने वॉव ली थी, शपथ ली थी कि वो कभी अपने आप से उससे सेपरेट नहीं करेगा, राइट? सो जैसे लेकिन बसानियो को अभी हाँ देनी पड़ जाती है क्योंकि उसके बहुत खास दोस्त की हेल्प की है, जान बचाई है उस लॉयर ने, राइट? सो बसानियो की जो रिंग है ब्रिशियानो पोर्शिया को लाकर दे देता है एंड शी थैंकफुली एक्सेप्ट्स दैट. ठीक है, वो बहुत खुशी से उससे एक्सेप्ट भी कर लेती है एंड वो ग्रेशियानो को कहती है कि नरिसा को रास्ता दिखाए. नरिसा कौन है यहाँ पे? नरिसा इज द क्लर्क, राइट? शी इज पोर्शिया's clerk, and Portia wants Bresciano to show Narissa the way to Shylock's house so that she can have Jew's signature on the deed. कि जो भी केस का अब जो भी सुनवाई हुई है, जो भी ट्रायल का नतीजा रहा है, उस पर उनको ज्यू के सिग्नेचर चाहिए, शार्लोक के सिग्नेचर चाहिए, उसके लिए वो रास्ता पूछ रहे हैं. तो यहाँ पर क्या होता है, नरिसा भी बहुत चालाकी से ग्रेशियानो से वो रिंग ले लेती है जो उसने भी दी थी. ठीक है, सो बहुत खुशी से, बहुत क्या कहते हैं, एक्साइटमेंट में पोर्शिया और नरिसा जो है ये वापस बेलमोंट की तरफ आ जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज काइंड ऑफ द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 2. Now this is the last act that we are going to discuss today, and that's it. Then this the Merchant of Venice that we are discussing, the detailed summary will be over, right? So this is the act 5 scene 1. It has only one scene, okay? And the setting of this scene is in the Portia's house. Portia के residence का scene है यहाँ पर, और दिखाया गया है कि इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट, राइट? इट्स अ ब्यूटीफुल नाइट एंड इट्स मूनलाइट. ठीक है, मूनलाइट नाइट है, चांदनी रात है. एंड you remember the couple, Lorenzo and Jessica, who was daughter of Shylock and who ran away with her lover. Elopement है यहाँ पर, भागकर शादी कर लेती है वो लोरेंजो से, अपने फादर की परमिशन के बिना शादी कर लेती है. एंड since her father is a Jew, but she
since she married to a Christian guy, and that's how her religion is Christianity now. Okay, and Lorenzo and Jessica are walking in the garden, and a servant comes to them to inform that Portia and Nerissa will arrive before the break of day. जो कुछ ही देर में जो पोर्शिया और नरिसा हैं दिन चढ़ने से पहले ही आ जाएंगे. सो लोरेंजो जेसिका को सजेस्ट करता है कि कुछ तैयारी करनी चाहिए पोर्शिया की रिटर्न के लिए, पर फिर वो बस बातें करते रहते हैं. लांसलॉट आता है बताने के लिए कि बसानियो इज आल्सो ऑन द वे टू बेलमोंट, बसानियो भी वापस आ रहा है. सो लोरेंजो चेंज कर लेता है माइंड कि घर पे अंदर जाने का, बल्कि वो सर्वेंट को कहता है ऐसा करो गार्डन में म्यूजिशियंस भेज दो, राइट, send out some musicians in the garden. And after some time when Portia and Nerissa arrives, they are welcomed by Lorenzo and Jessica. Lorenzo and Jessica हैं घर पर, वो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं. फाइनली पोर्शिया और नरिसा घर वापस आ गए हैं. पोर्शिया ने इंस्ट्रक्ट कर दिया था अपने सबके सारे घर के सर्वेंट्स को, मेड्स को, कि कोई भी नहीं बताएगा बसानियो और ग्रेशियानो को कि वो कहीं गए थे. ठीक है, नोबडी इज अलाउड टू मेंशन देयर एब्सेंस. कोई नहीं बताएगा बसानियो और ग्रेशियानो को that they were absent during this time. And कुछ ही समय बाद बसानियो and ग्रेशियानो also reached there. बसानियो और ग्रेशियानो भी आ जाते हैं. And they have Antonio also. They are accompanied by Antonio. वो एंटोनियो को भी अपने साथ लेकर आए हैं. ठीक है, सो एक बहुत ही फ्रेंडली और फैमिली काइंड ऑफ सीन है यहाँ पर कि म्यूजिक चल रहा है, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, एक खुशी फील हो रही है कि सब साथ में हैं, सब खुश हैं, राइट, मूनलाइट नाइट है. सो एक हैप्पीनेस का जो एटमॉस्फेयर होता है that we can see during this scene. Okay, then what happens, इतना अच्छा टाइम चल रहा था, सब खुश थे. जो नरिसा और ग्रेशियानो हैं उनकी अचानक से किसी बात पर फाइट हो जाती है. दे स्टार्ट क्वारलिंग अबाउट समथिंग. ठीक है, सो जो नरिसा है ये कंप्लेन करने लगती है. ये कहती है कि ग्रेशियानो ने अपनी वेडिंग रिंग अपने से अलग कर दी है. वेडिंग रिंग जो इनकी एंगेजमेंट रिंग की बात कर रहे हैं, पे शादी जब हुई थी, तो वो कह रही है कि ग्रेशियानो ने अपनी रिंग अपने आप से अलग कर दी है. ग्रेशियानो बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि उसने एक लॉयर के क्लर्क को दे दी थी वेनिस में, क्योंकि उसने एंटोनियो के लिए बहुत बड़ा काम किया था. लेकिन नरिसा जो है वो ऐसा दिखावा करती है, शी प्रिटेंड्स लाइक शी इज सस्पेक्टिंग हिम. ओके, कि वो ऐसा दिखावा करती है कि वो उसे सस्पेक्ट कर रही है, वो उसकी बात पर बिलीव नहीं कर रही है. ऐसे में क्या होता है दैट वो मानती है, वो कहती है, क्लेम करती है कि ग्रेशियानो ने जो रिंग है वो किसी दूसरी लड़की को दे दी है. देयर इज सम अनदर गर्ल हु इज इन हिज लाइफ एंड ही हैज गिवन द रिंग टू दैट गर्ल. सो जो पोर्शिया है वो भी ग्रेशियानो की गलती मानती है और कहती है ये बहुत गलत बात है, तुम्हारी वाइफ का फर्स्ट गिफ्ट था तुम्हारे लिए और तुमने उसे किसी और को दे दिया. वो कहती है कि मुझे बिल्कुल पता है, मैं अपने हस्बैंड पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते. शी क्लेम्स, ऑल्दो उसे सब पता है, बट यहाँ पे वो टीज कर रहे हैं अपने हस्बैंड्स को. ठीक है, उन पे सस्पेक्ट करके, उनको प्रिटेंड करके, उनको शो करके कि वी आर सस्पेक्टिंग यू, राइट. सो जो पोर्शिया है, शी सेज कि बसानियो तो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता. बसानियो वुड नेवर टेक हर रिंग ऑफ हिज फिंगर फॉर ऑल द वेल्थ एंड वॉल्ट. कि दुनिया की चाहे सारी दौलतें, सब कुछ, सारा वेल्थ, सब कुछ मिल जाए बसानियो को, तब भी वो ये रिंग अपने आप से अलग नहीं करेगा. लेकिन व्हाट हैपेंस, ग्रेशियानो बता देता है दैट बसानियो टू हैड प्रेजेंटेड द रिंग टू द लर्नेड लॉयर, कि जो लॉयर था बसानियो ने वो रिंग उसको दे दी है. ऐसे में जो पोर्शिया है वो भी ये शो करती है कि वो बहुत नाखुश है. शी इज क्वाइट डिसप्लीज्ड
with her husband behavior. उसके husband ने जो किया उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, right? So अब क्या होता है, बसानियो भी बहुत ट्राई करता है कि वो उसको समझाए सिचुएशन क्या थी, और वो कहता है कि जो यंग लॉयर था उसने बहुत ग्रेटनेस का काम किया था, और कहता है मैं बिल्कुल भी नहीं विलिंग था वो रिंग देने के लिए, बट लॉयर ने कहा कि वो सिर्फ वही लेना चाहता है, इसके अलावा वो कुछ लेगा नहीं. सो इट वाज काइंड ऑफ इंसिस्टेंस और प्रेशर में आकर बसानियों को वो रिंग देनी पड़ी, नहीं तो वो नहीं देता, राइट. सो जो नरिसा और पोर्शिया हैं ये प्रिटेंड करती हैं कि हम इनके आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं है, वो ये बात नहीं मान रही, ओके. उनको लग रहा है कि हमारे हस्बैंड्स झूठ बोल रहे हैं. So what happens next, that they accuses the husband for infidelity. Infidelity, it's a good word. Infidelity का आसान वर्जन is cheating, कि जो अब जिसे बोलते हैं ना कि लॉयल नहीं है, that is also known as infidelity, right? सो जो लॉयर है, अब क्योंकि उनके पास वेडिंग रिंग है, तो पोर्शिया कहती है कि थ्रेटन करती है उसको कि फिर तो मुझे अपनी बॉडी भी उसी को दे देनी चाहिए. सो एंटोनियो को बहुत गिल्ट फील होने लग जाता है. उसको लगता है कि ये नए कपल्स हैं, इनकी अभी शादी हुई थी, न्यूली वेड कपल्स हैं, और उसके कारण इनमें झगड़ा हो रहा है. सो वो कहता है कि एंटोनियो यहाँ पर क्या कहता है कि आई एम द रीजन ऑफ योर मिसफॉर्चून्स, मैं रीजन हूँ तुम्हारी इन सभी प्रॉब्लम्स का. और फिर पोर्शिया कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ही इज द मोस्ट वेलकम पर्सन इन हर हाउस. सो जो बसानियो है वो स्वेयर करता है, कसम खाता है फिर से कि जो पोर्शिया से वो कभी कोई कसम नहीं तोड़ेगा. अगर उसने कोई कसम ली इन फ्यूचर तो वो उसे कभी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या होता है, जो पोर्शिया है वो एंटोनियो को एक रिंग देती है और वो उसे बसानियो को देने के लिए कहती है, ठीक है. और वो कहती है कि ये रिंग अगली बार ज़्यादा संभाल के रखना, ठीक है. सो जो बसानियो है वो बहुत सरप्राइज हो जाता है कि ये रिंग उसने तो लॉयर को दे दी थी, है ना. सो ये पोर्शिया ने वापस कैसे दे दी, ये पोर्शिया के पास कैसे आई. देन पोर्शिया एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, लाइक दैट लेटर फ्रॉम बेलारियो टू द लॉयर, एंड जो भी इनका प्लान था सब कुछ वो डिस्क्लोज कर देती है कि कैसे शी वॉज द लर्नड लॉयर एट द ड्यूक्स कोर्ट एंड नरिसा वॉज द क्लर्क, ठीक है. सो वो अपने ये जो पोर्शिया है ये अपने हस्बैंड के आगे ये फाइनली डिस्क्लोज कर देती है, रिवील कर देती है दैट शी वॉज द लर्नड लॉयर, एंड Marissa, who accompanied her, was her clerk. So अब ऐसे में क्या होता है, गुड न्यूज़ की जैसे लाइन लग जाती है. अब यहाँ पर एंटोनियो के पास भी गुड न्यूज़ आई है कि जो लेटर है उसमें न्यूज़ थी कि उसके जो 3 शिप्स हैं वो सेफली रिटर्न करने वाले हैं. लोरेंजो और जेसिका के लिए भी गुड न्यूज़ है कि जो शार्लोट की हाफ एस्टेट है वो उनको मिल जाएगी आफ्टर डेथ, ठीक है. सो वो सब हैप्पी हो जाते हैं. तो काइंड ऑफ एक जो हैप्पी एंडिंग होती हैं वैसे नोट पर यहाँ पर हमारा सीन एंड होता है कि जो एंटोनियो है वो पोर्शिया के लिए ग्रेटफुल है, बहुत थैंकफुल है क्योंकि उसने उसकी लाइफ बचाई है, बिकॉज शी सेव्ड हिज लाइफ. एंड दूसरा ये यहाँ पर जो ग्रेशियानो है, लोरेंजो है, वो कहता है कि तुमने हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम स्टार्व थे और तुमने हम पर मना ड्रॉप कर दिया. मना MANNA, ये एक्चुअली एक जूइश वर्ड है. MANNA, इट्स अ जूइश वर्ड.
that means जब जूइश कल्चर में ऐसा माना जाता है, एक स्टोरी है कि एक बार कुछ लोग रास्ता भूल गए थे एंड दे वर इन डेजर्ट एंड दे वर स्टार्विंग बिकॉज ऑफ हंगर. ठीक है, तो ऐसे में जो गॉड है उनके, उन्होंने ऊपर से खाने की बारिश कर दी थी. ठीक है, सो दैट इज मन्ना, दैट इज नॉन एज मन्ना इन जूइश कल्चर. ओके, सो एक हैप्पी एंडिंग पे यहाँ पर ये जो कॉमेडी है ये एंड होती है, राइट? इट एंड्स राइट हियर. So we discussed today Act 4 Scene 2 and Act 5 Scene 1, and that's it for today. Thank you.